Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, and we are going to check what's the guy's expectation from the girl, Fahman's expectation from Sumbul. Let's see. I feel drawn to use the same card. Devil and fight the devil. Okay, let's see. God's card is angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for what we need to know about what's Fahman's, what can we know about Fahman's expectation from Sumbul. Thank you so very much. All right. Wow, how beautiful is this? Wow, so amazing. Four of Cups, Three of Pentacles. All right. How beautiful indeed, you know, how beautiful indeed. Okay. See, जब हमने फहमान की रीडिंग की थी तो हमने जब सुम्बुल का रीडिंग किया था तो यहाँ पे वाला कार्ड लाउड था ना, मैंने यहीं से रीडिंग स्टार्ट की थी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यही वाला कार्ड आपका अटेंशन खींच रहा होगा अपनी तरफ. एंड व्हाई नॉट? दिस इज फहमान्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सुम्बुल दैट शी इज द क्वीन ऑफ कप्स and she deserves all the happiness in life. She deserves to this is a queen of cups. Queen of cups is all about emotions and that motherly understanding, care, nurture, वो सारी चीजें हैं. It's more like she should go back to her ओरिजिनल सेल्फ. और जब बहुत पहले मैंने जब सुम्बुल फहमान की रीडिंग स्टार्ट की थी उस समय यू अंडरस्टैंड दैट हाउ सुम्बुल यूज्ड टू कम इन टू पर्सनालिटीज. एक उसका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला अवतार रहता था, एक उसका क्वीन ऑफ कप्स वाला अवतार रहता था, जो कि क्वीन ऑफ कप्स का अवतार हमेशा उसके पार्टनरशिप विद फहमान से शो होता था. ठीक है, जिसको वो शायद अपने रीडिंग्स में उसका, जब सुम्बुल की सोलो रीडिंग्स करते हैं ना, जब सुम्बुल की खाली रीडिंग्स कर रहे हैं, नॉट डायनामिक्स एंड ऑल, सो सुम्बुल ऑलवेज कम्स अक्रॉस एज व्हाट? Queen of Wands, focused, passionate, working on her dreams, driven, that kind of energy. और अगर Queen of Cups आती भी थी तो वो हमेशा एक दबे हुए फॉर्म में आती थी या अपोजिट आती थी. जब हम सुम्बुल फहमान की रीडिंग करते थे या फिर it is what we have done, so she used to come as a Queen of Cups, honoring the partnership and all that. And now that we are doing this guy's expectation of the girl, his expectation is what? That you become how you used to be, the queen of cups that you used to be. और हमने पहले वाली readings में देखा है ना कि how when we talk about the dynamics part of the readings, these two guys dynamics, it was always like queen of cups showing up, है ना? And this girl was always like pushing her emotions down with queen of wand energy, motivation, ambition, है ना? तो अभी उसका expectation क्या है? That she should become her original self जैसे वो थी. Queen of Cups, how she used to be. Wow. So this is what it is. बंदे का expectation यही है कि she should become how she used to be, honor her emotions and all that. Okay. उसका expectation यही है, yes, she should move out of some hermit space. She should move out of some. Okay, उसे लगता है कि वो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, चिंतन मनन कर रही है. यहाँ पे अब अगर देखो तो ब्लैक कलर मुझे दिख रहा है, एंड ब्लैक कलर इज ऑल अबाउट इन अ डार्क रूम, एंड इन अ डार्क रूम में you kind of hide yourself. So there is something like, hermit in the cave. You go inside the cave and you reflect on something. सुम्बुल की एनर्जी हमेशा ये भी आती थी कि सामने में तो वेरी वाइवेशियस, वेरी एम्बिशियस, वेरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लेकिन वो अंदर जब जाती है तो शी कीप्स थिंग्स टू हर सेल्फ. ये वाला पहले की रीडिंग्स में मैंने आपको काफी बारी रीडिंग में शो अप हुआ है, and that's why I am bringing this guidance, and I will always bring my guidance. Okay, I am not going to run my channel according to you, how as per some people's whims and fancy. तो यहाँ पे अगर मेरी रीडिंग इतनी फ्लो में जा रही है, इट मीन्स देयर इज अ सिंक, कुछ लय है इसमें. माई रीडिंग्स आर नॉट वन चाइना वन जापान. माई रीडिंग्स फ्लो इन सिंक्रोनिसिटी. दे क्रिएट अ सिम्फनी. And if you can't appreciate it, there's no point why you have to eat on my energy.
and unnecessarily get into energy debt also. So here is the hermit energy. So she is like, यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे एक कनेक्शन है. यहाँ पे जब फहमान सुम्बुल वाली रीडिंग देखो तो सुम्बुल फहमान के बारे में क्या सोच रही थी कि यू शुड स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, गेट ऑन द हॉर्स एंड मूव. इमोशन के रिलेशनशिप में मूव ऑन करो, मोर लाइक यू अप्रोच. अब यहां पे जब हम फहमान की बात कर रहे हैं तो ही ऑल्सो समवॉट नोज. तो देखो जो लोग एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड है ना, जो शो ऑफ के बियॉन्ड है, जो रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी रिलेशनशिप ये लाइक्स सब्सक्राइब्स शिपर्स आप ही लोगों से सीखा है एंड ऑल दोज थिंग्स के बियॉन्ड है ना, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है. इवन दो व्हेन दे आर नॉट टॉकिंग दे नो कि उसकी रियल मनस्थिति क्या है, और वो देख रहा है कि वो बाहर में तो जो भी है एम्बिशियस है क्या है नहीं है, बट अंदर ये केव के अंदर की चीजों को वो समझ रहा है. डू यू सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट. यहाँ पे वो क्या देख रहा है कि यस वो बाहर में तो बहुत एम्बिशियस दिखती है, यहाँ वहां बिजी है, वो सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, बट उसको पता है कि बेसिकली शी इज इन, वो केव में जब रहती है तो वहां पे डार्कनेस है और वो कुछ चीज पे रिफ्लेक्ट करती है डीपली, जिस चीज को वो शेयर नहीं करती है. उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहां से उसको अब निकलना चाहिए. वो जो सामने में बहुत वाइवेशियसनेस है और दूसरों को, बहुत सारे लोग आते हैं ना, शी इज वेरी हैप्पी. अरे बाबा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, जब शी इज वेरी हैप्पी एंड यू ऑल्सो टेल कि ये टैरो तो शी इज वेरी हैप्पी, ये टैरो की तो गलत सलत है, बायस्ड है, तो भैया जब आपको टैरो पे विश्वास ही नहीं है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो टैरो देखने में? ऑनर योर ओन थॉट्स एटलीस्ट, नो, ऑनर योर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉस. मैंने टैरो भी देखना है, टैरो पे विश्वास भी नहीं करना है, तो अपने समय का कर क्या रहे हो आप लोग? जरा यही बता दो मुझे. एटलीस्ट अदर पीपल हु आर वॉचिंग टैरो, दे लाइक टैरो, दे अंडरस्टैंड टैरो, दे बिलीव इन टैरो. यू आर समबडी हु डजंट, यू डोंट ट्रस्ट ऑन टैरो एंड यू स्टिल वॉच दैट टैरो. So just ponder, reflect, what are you doing with yourself, what are you doing with your time? All right, so now we will go in here. तो मैं बात कर रही थी कि कैसे इंस्पाइट ऑफ बाहर में जो भी चीज हैप्पी डैप्पी दिख रहा है, ब्लू स्काई, क्लियर स्काई, अंदर में उसे पता है कि शी रिफ्लेक्ट्स ऑन समथिंग, डीपली रिफ्लेक्ट करती है, कुछ चीजें हैं जो उसको सही नहीं है, मतलब शी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. तो वो क्या बोल उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये जो अपने आप को उसने केव में बंद किया हुआ है ना, इवन तो दुनिया को नहीं दिखता है कि वो केव में अपने आप को बंद की हुई है, बट उसको वो सोचता है, उसका एक्सपेक्टेशन है, शायद वो एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड है. क्योंकि देखो जब हम एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं ना, जैसे कि मम्मी और बच्चे जो होते हैं, माँ बाप और बच्चे, अब माँ बाप को कितना भी बोल दो हम सब ठीक है, हमने खाना खा लिया है, लेकिन माँ बाप को पता चल ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आपने खाना नहीं खाया है या समथिंग लाइक दैट, दैट डीप कनेक्शन जो होता है. तो इवन दो थिंग्स लुक वेरी हैप्पी डैप्पी आउटसाइड द विंडो, क्लियर है, नो क्लाउड्स, एवरीथिंग इज हैप्पी, अंदर में इतना बड़ा डार्कनेस है. ओके, इतना बड़ा डार्कनेस में जो कि वो देखता है. तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि शी शुड रिलीज हर सेल्फ फ्रॉम दिस डार्कनेस, मोर लाइक जो वो सजा अपने आप को दे रही है ना, उससे उसको रिलीज करना चाहिए अपने आप को. दिस इज वामान्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सुम्बुल, दैट शी शुड कम आउट ऑफ द केव, शी शुड कम आउट ऑफ दिस डार्कनेस जिसमें उसने अपने आप को बंद करके रखा है. अ वेरी डीप इनसाइट कमिंग इन डेफिनेटली, एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज लिंकिंग विद द सेकंड कार्ड. जस्ट लुक एट इट एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू हाउ ब्यूटिफुल इट इज लिंकिंग विद द थर्ड कार्ड. सो माई टैरो गाइडेंस इज ऑल अबाउट द सिम्फनी एंड द फ्लो एंड हाउ इट मूव्स. ओके, माई टैरो गाइडेंस डोंट ऑपरेट इन पैकेट्स. एक ये है, एक वो है, ऐसे नहीं होता है. And I am blessed for that. All right. तो यहां पे देखिए क्या मतलब है उसका, कि यहां पे जो तुम अनमनी हो, किस जहां पे जो भी डिससैटिस्फैक्शन है, एड्रेस दिस, मूव आउट फ्रॉम दिस डिससैटिस्फैक्शन. देयर इज समथिंग दैट इज नॉट, देखो यहां पे क्या है कि जो भी डिससैटिस्फैक्शन है, कहीं पे भी कुछ भी है, यहां जो भी जिस चीज से भी आप अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो, शी इज डिप्राइविंग हर ऑफ समथिंग दैट शी वॉन्ट्स. ओके, मूव टूवर्ड्स दैट. यहां पे वो जो फहमान बंदा है वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, वो बोल रहा है कि गो बैक टू योर सेल्फ हु यू यूज्ड टू बी. यहां पे क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बहुत ही अच्छे से अपने
throne पे बैठी है, tapped into her emotions, and just she's happy being who she is, because anyway she is the queen. She is the queen of emotions. Care karna, nurture karna is the strength of this Queen of Wands. And that is what her strength should be. Her emotions should be her strength. Her caring nature should be her strength. She should not be apologetic about it. Anyways, तो यहाँ पे देखो, what basically his expectation of Sumbul is that even though you बाहर में तुम बहुत दिखाते हो कि हर चीज़ अच्छा है, but we know that 75% तो तुमने अपने आप को इस केव में बंद किया हुआ है, एंड यू आर इन सराउंडिंग योर सेल्फ इन डार्कनेस. यू आर पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग. Stop punishing yourself. Come out of this cave, come out of this darkness, and move out of this. Do you see this? How he expects her to move out of this darkness? One step, but surely, slowly but surely, but slowly but steadily, move away from this darkness. You don't need to be, you don't have to tie yourself